Hello friends, this is Samina and welcome to Math Science. In this video, we will solve question number 15. So चलिएगा हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. लास्ट वीडियो में हमने 14th क्वेश्चन सॉल्व किया था. हमारी एक्सरसाइज 1.1 चल रही है. So in this video, we will solve question number 15. So let's see for what value of n are the nth terms of these two ABs are equal. So it is given directly that we have to find out the value of n. Okay, for what value of n? So n is equal to question mark. Let me take, okay, select color. Okay, n is equal to question mark and nth term of this 2ab. So one of the term will be the same for these two ABs. Okay, let us consider 63, 65, 67 and so on continue. And 3, 10, 17 is another AB. There will be one of the term which is same for both the ABs. If 80 for the first term, then there will be 80 for the second term too. When you're continuously doing this AP 63, 65, 67, 69 and so on continue, there would be some number which is same for both the ABs. Okay, if we considered 80, then that would come for both the ABs 80. But when it will come, at what number of terms, which number of terms it will come? So that is what we have to find out at the end of this at the end of this simplification. Okay, that is the question. So let me read this in Urdu. Hopefully you get an idea. यहाँ पे बोल रहा है कि n की किस कदर के लिए, कदर का मतलब होता है कीमत. ठीक है, n की वो कौन सी कीमत है यहाँ पर जब ये जो दोनों AP हैं उनका क्या होता है, nवां रुकन मसावी होता है यहाँ पे. So it is given that nवां रुकन क्या हो रहा है यहाँ पे, इक्वेट करना है हमें यहाँ पे. So nth terms are equal, but when, at what value of n. ठीक है, कौन सी कीमत होगी यहाँ पे n की जब उनके दोनों के nवें रुकन क्या होंगे यहाँ पे, मसावी होंगे. So first what we have to do, we have to equate both the ABs. Okay, so let me take eraser. So for the first AB, 63, 65 and 67 and so on continue. So you can easily find out what is A and what is D here. A is 63 and D is A2 minus A1. Then we will proceed for the second AP. A2 is 65 minus 63. So it will be 2. So next we'll solve for the second AP, which is 3, 10 and 17 and so on continue. So A is 3 and D is A2 minus A1, which is equal to 10 minus 3 becomes 7. So D for the second AP. Now we have to equate both the APs because their nth terms are equal. दोनों के क्या है यहाँ पे, nवां रुकन क्या है यहाँ पे, मसावी होगा, वो खुद ही कंडीशन दे रहा है यहाँ पे. सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले an का फॉर्मूला डालेंगे, a plus n minus 1 into D for the first AP, which is equal to a plus n minus 1 into D. आप चाहें यहाँ पे तो you can use a1 for this and a2 for this, d1 for this, d2, but n would be the same for both the AP. वही तो है जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. तो मैं पहले वाले इसको AP को a1 and d1 दे देती हूँ, सेकेंड वाले को हम a2 और यहाँ पे दे देते हैं d2, ताकि हमारा जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा, ताकि हम a को d की तरह के साथ मिक्सअप ना कर लें. फर्स्ट वाले AP को मैंने A1 और D1 और सेकेंड वाले AP को A2 एंड D2 से डिनोट किया है. तो चलिए हम सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे वैल्यूज. व्हाट इज A1? A1 is 63. ओके, 63 प्लस n minus 1 into D1 is 2, which is equal to A2 is 3 plus n minus 1, D2 is 7. So now what we have to do, we have to open the brackets and multiply it with n. So let me do it on the next slide. Okay, now this. Okay, 63 प्लस, अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, n minus 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से.
सो आपको पता है हम कैसे करते हैं, यहाँ पे n-1 को किससे 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो 2 इंटू n होता है 2n, फिर आपने साइन टू साइन मल्टीप्लाई करनी है, प्लस आर माइनस माइनस 2 1 जा होता है 2। तो चलिएगा हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2n माइनस 2, सो विच इज इक्वल टू, और कुछ है यहाँ पे, या हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 3 प्लस, आपने किसको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे n-1 इंटू 7, 7 इंटू क्या करना है n-1, तो क्या होता है 7 इंटू n 7n, प्लस और माइनस क्या होता है यहाँ पे माइनस होता है, 7 1 जा 7। तो चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे 7n माइनस 7। सो लेट मी टेक इरेजर एंड रब दिस, विल कंटिन्यू सॉल्विंग। सो अभी यहाँ पर देखिए आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो आप देख रहे हो कि एक n LHS में है, एक n RHS में है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू शिफ्ट दैट n term at one side, okay, both the term should be on the one side, either on LHS side or on RHS side. So n के जो terms हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको या तो LHS की तरफ शिफ्ट करेंगे या तो RHS की तरफ शिफ्ट करेंगे, और हमेशा यही चीज आप ध्यान में रखें कि n should be in the positive, okay, you will get n in the positive sign, okay. So यहाँ पर देख लेते हैं हम 7n, और यहाँ पर देख लेते हैं हम यहाँ पे 2n। सो बड़े वाले को उधर ही रखते हैं, बड़े अदद को, और छोटे अदद को बड़े अदद के पास हम शिफ्ट करते हैं, ताकि हमारी जो साइन है वो प्लस में हमारी बनी रहे, ताकि n की वैल्यू मैं प्लस में लाना चाहती हूँ, फिर माइनस में ला के फिर मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो पहले ही सोच लें और देख लें कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, उसी को वहीं पे रखें, एंड जो छोटा अदद है उसको उधर साइड लेके जाते हैं। सो हम करते हैं यहाँ पे 7n को इधर ही, प्लस 7n, अब मैंने यहाँ पे प्लस 2n को ले लिया है RHS की तरफ, तो ये हो जाएगा क्या माइनस 2n, ठीक है। सो n वाले टर्म को हमने RHS की तरफ रख दिया है। अब देख लेते हैं कौन से अदद यहाँ पे बचे हैं। एक तो बच गया है 63 माइनस 2, तो एक प्लस में एक माइनस में आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, कितना होता है यहाँ पे, और वो मैं सारे LHS की साइड रख रही हूँ, तो ये LHS में ही है तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, इट विल बी 61। आप देख लें यहाँ पे RHS में भी कुछ टर्म्स हैं, यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, आप देख लें वो कौन से हैं, एक तो है 3 और एक है -7। आप चाहें तो पहले सिंप्लीफाई कीजिए फिर उसको शिफ्ट कीजिए ऑन दी LHS साइड, इफ नॉट यू कैन कन्वर्ट और इंटरचेंज द साइन एंड शिफ्ट टू दी RHS साइड। अगर नहीं तो आप क्या कीजिए, अगर सॉल्व नहीं करना है आपको तो आप साइन चेंज कीजिए और LHS की तरफ शिफ्ट कीजिएगा। सो देखिए +3 है तो LHS की तरफ जाएगा, क्या बनेगा ये -3, -7 है LHS की तरफ जाएगा तो क्या बनेगा ये +7। तो अब फिर से फर्दर सिंप्लीफाई कीजिएगा आप इसको, कि कैसे करेंगे आप। सबसे पहले 61 + 7 कितना होता है यहाँ पे 68 -3 विच इज इक्वल टू 7n - 2n कितना होगा यहाँ पे 5n। अब इन दोनों को यहाँ पे सबट्रैक्ट कीजिएगा, कितना होता है यहाँ पे 65 which is equal to 5n, okay. So now you have to find the value of n, and 5 is in multiplication with n, so 5 will be shift to the denominator. So let me shift it, 65 divided by 5 which is equal to n. So finally we are getting the value of n. So 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 3s are 15. Value of n will be here 13 that we got finally. So आप यहाँ पे देख भी सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा है अब देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकली अगर आपको चेक करना है, यू वांट चेक इट आउट बाय योरसेल्फ कि ये जो 13वां रुकन है वो सही में भी क्या इक्वल होता है, क्या वहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या सेम आएगा। तो आप खुद भी चेक कर सकते हो। फिर 13 लिखना इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। कोई 50 लिखना है, कोई n वैल्यू हमारी 50 आ रही है, तब इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू राइट डाउन इन योर नोटबुक। तो मैंने यहाँ पे भी लिखा है, आप देख रहे होगे स्क्रीन पर, फॉर द फर्स्ट AP 63 65 67 से मैंने लिखा है यहाँ पे 13 टर्म लिखे हैं। सो कि 13 टर्म में मेरे को आ रहा है 87, एंड फॉर द सेकेंड AP आप देखिए 310, यहाँ पे 7 मैंने ऐड करते हुए आखिर में देखिए 13 टर्म 87,
सो हमारा जो 13th टर्म है वो क्या आ रहा है यहाँ पे 87 आ रहा है। सो हमारा जो आंसर है वो फाइनली करेक्ट है यहाँ पे, और हमने कोई मिस्टेक नहीं की है। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, एंड होपफुली you like my video and subscribe to my channel. Thank you so much.